Hello everyone, I am Shweta and my today's presentation is for class 1, subject English grammar. The name of the book is PC Wrench. Today's topic is revision of lesson 1, the alphabet, and lesson 2, forming words. We have already done these chapters, but today we will revise these two, the alphabet and forming words. आज हम the alphabet और forming words वाला chapter revise करेंगे. This is lecture number 3. So let's start. First one is the revision of lesson 1, the alphabet. पहले जो है हम द अल्फ़ाबेट का रिवीजन करेंगे. ये हमने पहले किया हुआ है, आज हम फिर से इसे रिवाइज करेंगे. So as you can see on the screen, there are 26 letters in the alphabet. Alphabet में कितने letters होते हैं? Total 26 letters होते हैं. So अभी जो screen पे दिख रहा है, these are capital letters. इसको हम capital letters कहते हैं. Capital letters को upper case letters भी कहते हैं. So these are 21 and these are capital letters. Capital letter means बड़े अक्षर. These are capital letters. So the next one is small letters. Small letters को हिंदी में छोटे अक्षर भी कहते हैं. So screen, as you can see on the screen, these are small letters. इसे हम छोटे अक्षर कहते हैं and lower case letters. इसे lower case letters भी कहा जाता है. So these are 20. There are 26 letters in the alphabet. One is capital letters and other is small letters. ये small letters है और जो पीछे वाला slide था उसमें capital letters थे. 26 letters of the alphabet is divided into two parts. वो दो parts में divided है. One is vowels and other one is consonants. So how many vowels are there? There are 5 vowels. A, E, I, O, U. So these are 5 vowels. 26 letters जो है वो 2 में divided है. One is vowels and one is consonant. There are 5 vowels. कितने vowels हैं? There are 5 vowels. A, E, I, O, U. There are 5 vowels. A, E, I, O, U. You have to learn these vowels. You have to learn the name of these vowels. ये vowels सबको learn होने चाहिए. A, E, I, O, U. Next one, consonants. Next one is consonants. So these are 21 consonants. Consonants कितने होते हैं? 21 होते हैं. टोटल लेटर्स जो है वो 26 होते हैं. अगर उसमें से हम 5 वॉवल्स को हटा देंगे तो 21 कॉन्सोनेंट. जो 5 वॉवल्स हमने हटा दिए ए, ई, आई, ओ, यू, उसके बाद जो हमारे लेटर्स बच गए दैट आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स. लेट्स रीड इट. बी, सी, डी. एज यू कैन सी E is not there. A भी नहीं है. A क्यों नहीं है? Because A is a vowel. तो हमने उसे नहीं लिया है. After that B, C, D, E. E भी नहीं है. Why E is not there? E is a vowel. F, G, H, I. As you can see on the screen, I भी नहीं है. I is also a vowel. J, K, L, M, N, O. O is also missing. Why it is missing? Because it is a vowel. P, Q, R, S, T, U. U is also not there. Why U is not there? U क्यों नहीं है? क्योंकि U एक vowel है. V, W, X, Y, Z. So these are 21 consonants. ये क्या है? ये these are 21 consonants. 5 vowels हैं और 21 consonants हैं. टोटल 26 letters हैं जिसमें से 5 vowels हैं A, E, I, O, U और 21 consonants हैं. As you can see on the screen, these are consonants. जो स्क्रीन पे अभी दिख रहा है that are called consonants. There are 21 consonants
एंड 5 वॉवल्स। 5 वॉवल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। नाउ लेट्स रिवाइज लेसन 2 फॉर्मिंग वर्ड्स। हमने ये पहले वाले लेक्चर में भी किया है। फॉर्मिंग वर्ड्स मीन्स शब्द रचना। हम शब्द रचना, शब्द कैसे बनता है और शब्द कौन होते हैं, कौन से लेटर्स, कौन सी ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम शब्द कहेंगे, मीन्स वर्ड कहेंगे। सी, a word is made up of letters. A word is made up of letters. Word किससे बना होता है? लेटर से बना होता है। So there are 26 letters. कितने letters हैं इंग्लिश में? There are 26 letters. और उन्हीं letters का यूज करके word बनाया जाता है। उन्हीं letters का यूज करके हम word को बनाते हैं। Next one is a word must have a meaning. जो भी हमने word को बनाया है उसका मतलब होना चाहिए। जैसे for example CAT cat, it is a word and it is having a meaning. जैसे CAT cat है, ये एक word है और इसका मतलब भी है। cat means बिल्ली। The word, a word must have a meaning. A word must have a meaning means एक शब्द का मतलब होना चाहिए। A word must have a meaning. उनका मतलब जरूर होना चाहिए। Next one is a group of letters without meaning is not a word. अब मैंने कोई से भी group of letters ले लिया, for example BCD. मैंने BCD ले लिया, क्या इसका कोई मतलब है? No, it is not having any meaning. इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए it is not a word. That's why BCD is not a word. A group of letters without meaning is not a word. अगर मैंने और भी कुछ letters ले लिए, लेकिन अगर उसका कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है, it means that is not a word. इसका मतलब है कि वो एक शब्द नहीं है। शब्द होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका कोई मतलब निकले। अगर उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा तो इट मीन्स वो वर्ड नहीं है, शब्द नहीं है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। देखो PNO, PNO, क्या इसका कोई मतलब है? PNO का कोई मतलब है? नो, इट इज नॉट हैविंग एनी मीनिंग। इसका कोई मतलब नहीं है, ये वर्ड नहीं है। सेकेंड वन इज रैट, RAT, रैट। रैट का कोई मीनिंग होता है? यस, रैट मीन्स चूहा। रैट मीन्स चूहा, तो RAT, रैट जो है ये एक वर्ड है। नेक्स्ट वन इज STU, क्या STU का कोई मतलब है, कोई मीनिंग है? नो, देयर इज नो मीनिंग ऑफ STU, सो इट इज नॉट अ वर्ड, इसलिए STU शब्द नहीं है, वर्ड नहीं है। नेक्स्ट वन इज 10, TEN, 10, TEN, 10, क्या ये वर्ड है? यस, इट इज अ वर्ड। 10 मीन्स 10, 10 मीन्स 10। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स देखे जिसमें से 2 वर्ड नहीं थे और 2 वर्ड है। रैट एंड 10 इज अ वर्ड। रैट और 10 जो है एक वर्ड है। रैट का मतलब चूहा होता है और 10 का मीन्स 10 होता है। नाउ लेट्स सी DOG। इन 3 लेटर्स को मैंने कंबाइन कर दिया तो ये हमारा बन गया डॉग। सो डॉग इज अ वर्ड। डॉग क्या है? एक वर्ड है। डॉग मीन्स कुत्ता। सो दिस इज अ वर्ड, ये एक वर्ड है। सो नाउ लेट्स डिस्कस द होमवर्क सॉल्यूशन। मैंने पिछले लेक्चर में होमवर्क दिया था, look at the pictures and fill in the blanks with correct letters to complete each word. This was your homework. ये मैंने पीछे वाले लेक्चर में होमवर्क दिया था। तो now we will discuss its answer. हम अब इसके आंसर्स को देखेंगे। First one is CART, cart. CART, cart. Second one is apple. APPLE, apple. Third one is
arm, A-R-M, arm. Fourth one is bird, B-I-R-D, bird. Next one is B-A-N-A-N-A, banana, banana. Next one is book, B-O-O-K, book. Next one is card, C-A-R-D, card, C-A-R-D, card. Next one is belt, B-E-L-T, belt. Next one is bike, B-I-K-E, bike. तो मैंने जब इन लेटर्स को पुट कर दिया तो ये एक वर्ड बन गया. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर होमवर्क. ये होमवर्क का सॉल्यूशन है जो मैंने पिछले लेक्चर में दिया था. लेट्स रिपीट अगेन. फर्स्ट वन इज कार्ट, C-A-R-T, कार्ट, जो हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज करते हैं, विच वी यूज इन द मॉल्स. मॉल्स में मेनली यूज किया जाता है सामान को रखने के लिए. नेक्स्ट वन इज एप्पल, A-P-P-L-E, एप्पल. एप्पल मीन्स सेब. नेक्स्ट वन इज आर्म, A-R-M, आर्म, A-R-M, arm means हाथ. Next one is bird, B-I-R-D, bird. Bird means पक्षी. Next one is banana. Banana means केला. Next one is book, B-O-O-K, book. Book means किताब. Next one is card, C-A-R-D, card. Card means पत्ते. ये ताश के पत्ते हैं. Next one is belt, B-E-L-T, बेल्ट. ये जो हम कमर में पहनते हैं दैट इज अ बेल्ट. नेक्स्ट वन इज बाइक, B-I-K-E, बाइक, मोटरसाइकिल. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर होमवर्क. नाउ लेट्स सी टुडेज होमवर्क. योर होमवर्क इज रिवाइज लेसन 1 द अल्फाबेट एंड लेसन 2 फॉर्मिंग वर्ड्स फ्रॉम द वीडियोस. जो भी मैंने वीडियोस दिए हैं द अल्फ़ाबेट के और फॉर्मिंग वर्ड्स के, ये रिवाइज करना है. आई विल गिव यू द असाइनमेंट एंड आई विल गिव यू द टेस्ट ऑल्सो. मैं असाइनमेंट और टेस्ट भी दूंगी. सो यू हैव टू रिवाइज दीज 2 लेसन्स. थैंक यू एंड हैव a nice day. You must have enjoyed watching this video.